Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Elawat, and we are doing chapter 3, right? The synthetic fibers and the plastics. I hope you're enjoying the students. You're enjoying the class. Isn't this chapter very interesting? Yes, Dharya, very good. So, in the previous module, dear students, we have talked about the synthetic fibers, two fibers. One was polyester, another was acrylic. Now, in this particular video, dear students, we'll talk about the blended fibers. Have you heard this term? Anybody who has heard this term? Blended fibers. Blend का मतलब होता है बेटा mixture. ठीक है? So blended fibers जो हैं, they are basically created when we mix two or more different kinds of fibers. अगर हम दो या दो से ज्यादा फाइबर्स को मिक्स करते हैं तो जो एक नया फाइबर बनेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेंडेड फाइबर्स. ओके, सो ब्लेंडेड फाइबर्स दे आर made, they are created by mixing two or more different kinds of fibers, and then we create a new fabric. Now, any idea why do we create a blended fabric? Why do we create new fabric? Why do we need a new fabric? Any idea? Yes, because what we do, we take good qualities of first fiber and we talk about this good qualities of second fiber. Now we want that all the qualities or good qualities of first fiber and the second fiber, they should be present in a single fiber. Right? Just have an example. Suppose we know that जो cotton है बेटे, हम जानते हैं जो cotton है, cotton, okay? It's very comfortable to wear. Cotton पहनने में बहुत बहुत comfortable होता है, कैरी करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको पता है कि it's very difficult to press it because ये wash होने पर shrink कर जाता है, इसमें wrinkles पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, and we have to press it a lot. Okay, we have to press it a lot. जबकि अगर हम पॉलिस्टर की या सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें बेटा, तो वो रिंकल फ्री होते हैं, दे डू नॉट गेट रिंकल्ड, वो श्रंक नहीं होते अगर आप उन्हें वॉश करते हैं, सो दे डोंट गेट श्रंक, एंड दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल टू वियर जस्ट लाइक दी कॉटन्स. ठीक है, वो कंफर्टेबल भी होते हैं. सो अगर हम कॉटन और पॉलिस्टर को ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक ऐसा फैब्रिक क्रिएट होगा, एक ऐसा फाइबर क्रिएट होगा जिसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज होंगी. मीन्स कौन सी क्वालिटीज होंगी? इट विल बी कंफर्टेबल ऑल्सो, देयर विल बी नो रिंकल्स इन दिस क्लॉथ, एंड इट विल बी इजी टू वॉश, एंड इट विल रिमेन इट विल नॉट श्रिंक ऑल्सो. राइट? तो हमने दो फैब्रिक्स को मिक्स करके एक नया फैब्रिक बनाया, एक नया फाइबर बनाया, and that fiber is called as a blended fiber. ठीक है? तो आजकल nowadays this is a very unique trend that people like to wear the blend fibers. Blended fibers are more comfortable in comparison to any natural or the synthetic fiber. Now let's discuss some of the blended fibers. First, terylene and cotton. इन दोनों को अगर हम ब्लेंड करते हैं बेटा, सो इट बिकम्स टेरिकॉट. अब आपने ये सुना होगा टेरिकॉट की ड्रेस, इजंट इट? आपकी जो ड्रेस मटेरियल होता है, जो ड्रेस है, वो बहुत ज्यादा टेरिकॉट का होता है. सो हम टेरिलीन को हमने मिक्स किया और हमने कॉटन को मिक्स किया है, दोनों फाइबर्स को मिक्स किया है, एंड वी हैव क्रिएटेड अ न्यू फैब्रिक व्हिच इज कॉल्ड एज टेरिकॉट. सेकेंड, हमने टेरिलीन और वूल को मिक्स किया है, एंड वी हैव मेड इट टेरी वूल. ठीक है? We have made terry wool. Terylene plus wool will constitute the terry wool, and it is a good substitute for our woolen clothes because जो woolen होती है, wool जो fabric है हमारा, it is very very costly. So comparatively the terry wool is less expensive. Now, a shirt which is made from polyester and cotton. अगर हम polyester और cotton को blend करते हैं, तो जो shirt बनती है बेटा, वो 100% रिंकल फ्री होती है, क्रीज फ्री होती है, प्लेन होती है.
in comparison to any shirt if we make it from 100% cotton. तो अगर हम 100% कॉटन से एक शर्ट बनाएंगे उसमें बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़ेंगे, लेकिन अगर हम पॉलिस्टर और कॉटन को ब्लेंड करके एक शर्ट बनाएंगे सो दैट विल बी मोर रिंकल फ्री. ओके, क्लियर? लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स. देखिए अगर हम जीन्स बनाते हैं, राइट, अगर हम कॉटन और लाइक्रा को ब्लेंड करके जीन्स बनाते हैं तो ये जो जीन्स है ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं, स्ट्रेचेबल होती हैं, एंड दे गिव बेटर शेप इन कंपैरिजन टू कॉटन जीन्स. बेटर फिट होती हैं वो. आजकल आपने देखा होगा जीन्स, स्ट्रेचेबल जीन्स आती हैं. सो दी स्ट्रेचेबल जीन्स दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कॉटन प्लस लाइक्रा. सिमिलरली अगर हम अक्राइलिक और वूल को ब्लेंड करते हैं और इनसे हम ट्राउजर्स बनाते हैं तो जो ट्राउजर बनता है बेटा वो लेस एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू द वूल ट्राउजर्स. सिमिलर अगर हम वूल के ट्राउजर्स बनाते हैं तो वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर हम अक्राइलिक और वूल को ब्लेंड करके बनाते हैं देन दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड दे आर मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू द वूल. ओके, नाउ कमिंग टू द see, we have discussed about the various synthetic fibers and we've also discussed the various blended fibers. Now let's discuss the advantages of synthetic fibers. Synthetic fibers की क्या advantages हैं? देखिए we have discussed earlier also कि जो हमारे synthetic fibers हैं उनकी tensile strength बहुत होती है. They are highly tensile. Tensile means when you stretch them, they resist. They will not tear. Wear and tear will be very less. So they can withstand heavy loads. वो heavy load को withstand कर सकते हैं बेटा. इतना मजबूत होता है ये फैब्रिक, synthetic fabrics कि they can tolerate a great amount of load. Then secondly जो हमारे synthetic fabrics होते हैं ये hassle free होते हैं. Means इनमें कोई wrinkles नहीं पड़ते. So we don't have to take much care while washing them. हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जब हम उन्हें वॉश करते हैं. थर्डली ये अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखते हैं. ठीक है ना बेटा, दे कैन इजीली रीगेन देयर ओरिजिनल शेप. सो वेयरर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. क्लियर? तो आप आसानी से इन कपड़ों को मूव करके इन कपड़ों को वेयर करके आप आसानी से मूव कर सकते हैं. कोई अनकंफर्टेबलनेस फील नहीं होती आपको. ये सॉफ्ट होते हैं और इजीली स्ट्रेचेबल होते हैं. मींस दे आर वेरी सॉफ्ट टू वेयर, दे वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड दे आर इजीली स्ट्रेचेबल. राइट? ड्यूरेबल भी हैं और लेस एक्सपेंसिव भी हैं. आपके सारे जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उनके कंपैरिजन में दे आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, जिसको हम कहते हैं दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. राइट? मीन्स दे सूट योर पर्स. क्लियर? बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. देखिए इतना सब कुछ हमने बात किया है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, एंड दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट दी ब्लेंडेड फाइबर्स. तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है बेटा ये ज्यादातर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते. तो आप इन्हें समर्स में नहीं पहन सकते बिकॉज दे विल नॉट एब्जॉर्ब योर स्वेट. ओके, सो यू विल नॉट फील, दे विल नॉट एब्जॉर्ब योर स्वेट, दे विल नॉट अलाउ योर स्वेट टू इवेपोरेट. दे कैन कैच फायर वेरी इजीली. ठीक है ना, बहुत जल्दी आग लगने के चांसेस होते हैं अगर आपने सिंथेटिक फाइबर्स को पहना है तो. सेकेंडली इन पे आयरन नहीं कर सकते आप, बिकॉज अगर आप इन्हें आयरन करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो उसकी वजह से ये फैब्रिक मेल्ट कर जाता है. So these are three acute disadvantages, I would rather say. They cannot absorb moisture, they catch fire easily, and they cannot be ironed easily as they melt very quickly. तो आप इनके ऊपर प्रेस नहीं कर सकते. अगर बहुत ज्यादा गर्म प्रेस अगर आपने इस पे यूज की बेटे, आयरन किया, गर्म आयरन यूज की, so they will melt, they will automatically stick to the lower surface of the iron. Now let's come to the collective table. एक collective table डिस्कस करते हैं जहां पर आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं. Let's identify the different types of fibers. So basically this is an activity for you कि हम क्या करेंगे, हम फाइबर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स को टेस्ट करेंगे, उनके ऊपर इफेक्ट देखेंगे कि फायर का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. When they burn, what kind of flame is produced, किस तरीके की स्मेल होती है उनकी अगर वो बर्न होते हैं. अगर पर्टिकुलर फैब्रिक को हम बर्न करते हैं तो किस तरीके की स्मेल प्रोड्यूस होगी या किस तरीके की ऐश बचेगी.
So let's talk about these all 5 qualities. So first of all, we are taking a fabric which is cotton and rayon. ठीक है, कॉटन और रेयन जो है बेटा, ये दोनों ही आग को जल्दी कैच कर लेते हैं. ठीक है, दे कैचेस फायर वेरी इजीली. एंड व्हेन कॉटन एंड रेयन बर्न करते हैं तो दे गिव यू ब्राइट येलो कलर. वो जो फ्लेम होती है, आग की जो कलर है, वो ब्राइट येलो फ्लेम देती है ये. और जब आप इन्हें बर्न करते हो तो ऐसी स्मेल आती है जैसे पेपर को बर्न करने से लगता है. और जो ऐश होती है दैट इज वेरी वेरी लाइट, बहुत हल्की होती है, बहुत फेदरी होती है, बहुत आसानी से इट मूव्स अवे अलॉन्ग विद एयर, हवा के साथ उड़ जाती है. सेकेंड जो फैब्रिक है लाइक वूल एंड सिल्क, वूल और सिल्क दोनों ही जो है बेटा ये आसानी से दे डू नॉट कैच फायर वेरी इजीली. तो बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं ये. एंड व्हेन दे बर्न विद व्हेनेवर दे बर्न्स, आग तो वैसे वो जल्दी से पकड़ते नहीं है, बट इफ दे कैच फायर सो दे विल गिव यू येलो फ्लेम. येलो फ्लेम देंगे आपको, लेकिन दे विल नॉट बर्न कॉन्टिन्यूसली, लगातार बर्न नहीं करेंगे. और उनसे बर्न होने से ऐसी स्मेल आती है जैसे कि हेयर्स आर बर्निंग. इफ यू बर्न द हेयर सो दे स्मेल लाइक बर्निंग हेयर. And the ash which is left after burning the silk and wool, it is highly crushable, it is beaded, and it is of black color. So nylon, polyester and acrylic means mainly आपके जो synthetic fibers हैं. Synthetic fibers जो है बहुत आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं, बहुत आसानी से नहीं पकड़ते हैं अगर हम कंपेयर करें. लेकिन अगर आप उनके ऊपर गर्म प्रेस रख देते हैं सो दे मेल्ट वेरी इजीली, बहुत आसानी से वो चिपक जाते हैं. दे स्टिक टू द लोअर सरफेस ऑफ द आयरन. दूसरा, अगर हम फ्लेम देते हैं उनको तो वो श्रिंक कर जाते हैं, बर्न करते वक्त वो श्रिंक करते हैं. ओके. और व्हेन दे बर्न दे कॉज स्प्लूटरिंग, मतलब बीच बीच में आपको छटपट सी की आवाज आती रहती है. सो दे बर्न विद स्प्लूटरिंग. इनकी कोई डेफिनेट स्मेल नहीं है, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर नायलॉन और पॉलिस्टर और एक्राइलिक इज बर्निंग. एंड जो ऐश बचती है दैट इज वेरी वेरी हार्ड, इट इज अनक्रशेबल. जो ऐश बचेगी बेटा वो बहुत हार्ड हो जाती है, जैसे आप प्लास्टिक को बर्न करते हो तो एक बॉल सी बन जाती है, दैट इज वेरी वेरी हार्ड. सिमिलरली नायलॉन और पॉलिस्टर एक्राइलिक को बर्न करके जो ऐश बचेगी दैट्स वेरी हार्ड एंड आप उसको क्रश नहीं कर सकते. सो फ्रॉम दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, like we have understood the characteristics, तो अगर हम किसी फाइबर को बर्न करते हैं तो आप इस बर्निंग टेस्ट से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो what kind of fiber is being burned. Okay, if it is smells like paper, it is cotton, or either it is cotton or rayon. If it is burned like specific hair, अगर आपको बर्निंग हेयर की स्मेल आती है then it is silk and wool. अगर कोई डेफिनेट स्मेल नहीं है so nylon, polyester, acrylic is burning, right? Yes, so this activity you can, with the help of this activity you can identify if somewhere at some point of time some fabric is burning, so you can easily identify from the smell. Okay, and even from the ash which is left after burning. ठीक है बेटा जी. Okay, so आज हम इतना ही टॉपिक फिनिश करेंगे बेटे. I hope you understood this topic. Yes? Okay. So coming to your homework, first of all you will be making notes of this topic. आप इस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे and you will read your page numbers 41 to 42. दोनों पेज नंबर्स को thoroughly read करेंगे and you have to focus on this activity. You have to be very very clear with the content which is given in the book. Okay? And even then if there is doubt, any query you feel, you are most welcome. You can share your queries with me, right? Okay, so bye everyone.